बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. Dear students, we start our today's class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 6 and the period is English language text. This is week 5 and the video number is 4. Students, in our previous class, we had completed unit 8 advertisements, and with this unit we have completed our 3 units of final term. Now today in this video class we are starting our last unit of final term, unit 10 film study. Unit 10 film study, and in this unit we are going to study about the films and movies. So today in this video class, first we'll learn about the formal definition of a movie or film. Then we'll also discuss, then we'll study the different elements of a movie. Then we'll also study how these elements are important in order to analyze a movie. How these elements are important to understand in order to analyze any movie. So let's start from the preview, book page 260. Book page 260. Okay, what is a movie? Students, in this modern era, we all know what are movies. We all are familiar with the word movie or film. Especially students, you. These days, when there is a lockdown and you are having like vacations at your homes, so you are maybe watching movies at your homes. You are maybe enjoying your time by watching different kinds of movies at your home. Normally we are watching movies, and this is how we all know what are movies. We all are familiar with the word a movie. So now coming back to the formal definition of a movie is a story that is told through pictures and sound. A movie is a story that is told through pictures and sound. In other words, movies are generally narratives or stories that use moving images, scenes, sound, and that uses images, music and sound effects to tell their stories. Movies are generally stories that use moving images, scenes, music and sound effect to tell their stories. Okay? Okay. Where does this concept of a movie comes from? A movie comes from a written word form called a screenplay. The concept of a movie comes from a written word form called a screenplay. And what is this screenplay? The screenplay is the script written for a movie or television. And sometimes this screenplay is adopted from a novel or play. Okay? So actually, movies are relatively a new form of storytelling. Movies are a new form of storytelling, and they need much less dialogue to tell their stories as compared to the novel or play. Movies need much dialogue to tell their stories as compared to the novel or play. Okay, what about the features of movies? Movies has almost all the same features as the narratives or stories. Okay, we have already studied the features of narratives in unit 3, folktales and legends. In our first semester midterm, we have studied the features of narratives, folktales and legends. Okay, let's review them. The first feature is introduction of a narrative, in which the
in which the introduction presents the characters and setting. Characters and setting. The characters who are performing the role in the story, and the setting, the place where the story sets. Second feature, events, means one by one the clear sequence of all the events in a story. Climax. Climax is the high point in the narrative where the story becomes more exciting and interesting for the readers. Okay, and the fourth feature is resolution. Resolution is the conclusion or ending to the narrative. With these four features, movies have two additional features as well, and these are music and sound effect. Music and sound effect to help create mood and atmosphere in a movie. To help creating mood and atmosphere in a movie, music and sound effects are used in movies. And non-verbal aspects, for example, facial expressions, gestures, and movements of characters in a movie. So these are all the features of a movie, as same as the features of narrative or stories. The first one is introduction, second events, third climax, fourth resolution, fifth music and sound effects, and sixth non-verbal aspects like facial expressions and gestures of the characters in a movie. So this is all about the explanation of a preview. Now let's discuss the question answers of reflecting on page number 261. As you know, in reflecting, we discuss these questions. I am explaining you these questions, and you ask these questions yourself and answer them verbally. Okay? Let's start discussing these questions. The first question is, what type of movies do I like to watch? Why do I like them? So what type of movies do you like to watch? What are your favorite movies? What are the kinds of movies which are your favorite one? So tell the names of your favorite movies and also mention the reason why do you like to watch that type of movies. Okay, means the science fiction movies and the action movies or the cartoon movies. Which genre of movie is your favorite one? So mention the reason why these movies are your favorite and why do you like to watch such kind of movies. Okay, the next question is the vice versa, which is what type of movies do I not like to watch and why do I not like to watch them. So in the same way, what type of movies are not your favorite one, which you don't like to watch, and also mention the reason why these type of movies you don't prefer to watch. Okay, if you don't like to watch the science fiction movie, so mention the reason why you don't like to watch the science fiction movie. Okay, if you don't like to watch the action movies, so mention the reason why you don't like to watch action movies. Okay, this third question, what is my favorite movie and why is it my favorite? So in this question you have to answer the name of your favorite movie. Okay, what is your favorite movie and why that movie is your favorite, mention the reason also. Fourth question, who are my favorite actors and actresses, why do I like them? So this is another interesting question in which you have to ask, in which you ask about the names of the actors and actresses. Means you are asking about the names of your favorite actors and actresses. So tell the names of your favorite actors and actresses, why do you like them, means mention the reason, for what reason do you like them, means about their personality, about their character in a particular movie, or for what qualities do you like to, these actors are your favorite, these actors and actresses are your favorite, mention the reason, what qualities about them you like. Okay, fifth question is, has there ever been a movie character that I would like to be? Has there ever been a movie character that I would like to be? Why do I want to be like this character? So student, do you remember any character
in a movie, in a particular movie, which inspires you that much that you want to that you want to be like that character, that you would like to be that character, and you want to perform that character in the same movie again. So mention the reason why you like that character and why you want to perform that character in a movie. So these are all the questions of reflecting. You ask these questions again yourself and answer them verbally. So now the next we are going to study is the different elements of a movie. Okay, so we are going to study the different elements of a movie. These elements are important to understand in order to analyze any movie. So स्टूडेंट्स, आप लोग मूवीज़ देखते हैं बट आप लोग एक्टिव होकर के मूवी को नहीं देखते, पैसिवली देख रहे होते हैं. आपको नहीं आइडिया होता कि मूवी में क्या साउंड है, क्या साउंड इफ़ेक्ट्स किसे कहते हैं, कैरेक्टर्स कितनी काइंड्स के होते हैं और क्रेडिट्स कौन है मूवी के. सो दीज एलिमेंट्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज एनी मूवी and how to appreciate it and how to criticize it in a better way. Okay, so these elements are given on page number 262. Let's start reading them. The first element of a movie is the credits. The credits of a movie list the people who have made contributions to the movie. तो credits जो हैं मूवी में किसी भी, वो कौन लोग होते हैं जो कि उस मूवी में क्या कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं किसी भी मूवी में. फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, राइटर्स, एक्टर्स एंड अदर क्रू मेंबर्स ऑफ द मूवी. तो ये जो मूवी कोई बनाई जाती है तो उस मूवी को बनाने के लिए कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट. तो वो सारे लोग उनकी सारी जो लिस्ट होती है वो किसी मूवी के स्टार्टिंग में अपेयर होती है. उनके जो नेम के लिस्ट होती है वो हमें नज़र आती है मूवी स्टार्ट होने से पहले भी और लास्ट में भी. So these are all the credits of a movie, means the producer, the director, the names of all the characters, and the writer of a movie, the crew means other cameraman और भी जो लोग होते हैं जो उस मूवी में हेल्प कर रहे होते हैं एक दूसरे की. तो वो सारे मेंबर्स, उनके नेम जो है वो स्टार्टिंग में या फिर मूवी के एंड में जो हमें लिस्ट दिखती है वो सारे क्रेडिट्स होते हैं उस मूवी के. ओके. The next element of a movie is the characters. The characters of a movie are the different people who appear in it. तो characters जो हैं वही सारे जो किसी भी मूवी में अपेयर होते हैं कोई रोल प्ले करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, किसी स्पेसिफिक रोल को प्ले करने के लिए. So these are the people who appear in any movie. We call them as characters of the movie. In a movie, usually we have two kind of characters, protagonist and antagonist. तो किसी भी मूवी में हम किस तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं, दो काइंड्स हैं. जो दो मेन काइंड्स हैं कैरेक्टर्स की वो है प्रोटोगनिस्ट और एंटागनिस्ट. तो प्रोटोगनिस्ट कौन है? द प्रोटोगनिस्ट इन अ मूवी इज द गुड कैरेक्टर और द हीरो. तो किसी भी मूवी में प्रोटोगनिस्ट जो है वो उस मूवी का गुड कैरेक्टर समझा जाता है, यानी कि हीरो ऑफ अ मूवी जिसे हम कहते हैं, उसको मूवी के लैंग्वेज में कहते हैं प्रोटोगनिस्ट ऑफ अ मूवी. ओके. द प्रोटोगनिस्ट इज यूजुअली ऑल्सो द मेन कैरेक्टर इन अ मूवी. तो प्रोटोगनिस्ट को ही किसी भी मूवी में मेन कैरेक्टर समझा जाता है. द एंटागनिस्ट इन अ मूवी इज द बैड कैरेक्टर और द विलन. इसी तरह से जो एंटागनिस्ट है किसी भी मूवी में जो कि बिल्कुल हीरो के अपोजिट होता है, मतलब वो बैड कैरेक्टर प्ले करता है, तो उसको कहते हैं एंटागनिस्ट. मूवी की लैंग्वेज में उसे कहते हैं एंटागनिस्ट, जो कि मूवी का विलन होता है, जो हीरो के अपोजिट होता है, उसके अगेंस्ट काम करता है. फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है हैरी पॉटर. तो उस मूवी में जो हैरी पॉटर है वो खुद गुड कैरेक्टर है, उस मूवी का हीरो है, और जो एंटागनिस्ट है, मतलब जो हैरी पॉटर है वो प्रोटोगनिस्ट है, और उसके जो अपोजिट बैड कैरेक्टर है वो वोल्डेमॉर्ट. वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर एक अजीब से बच्चे का है जो कि हैरी पॉटर को हमेशा तंग करता है, उसको इरिटेट करता है, उसको हमेशा डिग्रेड करता है. तो इस तरह से जो है वो हम देखते हैं उस मूवी में कि जो वोल्डेमॉर्ट है वो बैड कैरेक्टर है, हैरी पॉटर गुड कैरेक्टर है. हैरी पॉटर इज द हीरो ऑफ द मूवी and Voldemort is the villain of the movie. Okay. The next element of a movie is conflict.
कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मूवी का. कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन और स्ट्रगल. इन अ मूवी कॉन्फ्लिक्ट्स यूजुअली कंप्राइज द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट द कैरेक्टर्स हैव टू फेस एंड ओवरकम. किसी भी मूवी में मूवी को आगे ड्राइव करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मूवी में. अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि वो स्ट्रगल जो हीरो कर रहा है या बाकी कैरेक्टर्स कर रहे हैं, या वो प्रॉब्लम्स जो कि तमाम लोग मूवी के अंदर उसको फेस कर रहे हैं, उससे उसको ओवरकम करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ मूवी. ओके, तो मूवी में जो है वो conflict is an important part of a movie because it is what drives a movie forward. Without it, a movie would not be very interesting to watch. अगर मूवी में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो मूवी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बल्कि बहुत बोरिंग हो जाएगी. कॉन्फ्लिक्ट्स ही जो है मूवी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ओके, as the movie you are watching progresses, the characters in it will encounter many forms of conflict. तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को इनकाउंटर कर रहे हैं. मूवी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक के बाद एक जो है वो प्रॉब्लम होती है कैरेक्टर्स को, तो वो उसे सॉल्व करने के लिए एक के बाद एक सिचुएशन है जिसमें वो फंस जाते हैं और फिर उसको सॉल्व करने के लिए वो एफर्ट करते हैं. तो वही क्या है, उसी की वजह से मूवी आगे बढ़ती है और इंटरेस्टिंग होती है, बोरिंग नहीं होती, एक्साइटिंग होती है. द वे दीज कैरेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू देयर प्रॉब्लम्स allows us to know them better and to make judgments about them. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम उनके बारे में ओपिनियन फॉर्म करें कि वो जो है वो सही कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर इसमें जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे से जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है अपना. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मूवी में किस तरह से हो सकता है? In movie, conflict can be represented in many ways. It may occur between two people, such as the protagonist and the antagonist. तो मूवी में कॉन्फ्लिक्ट या तो टू पीपल्स के बीच में होगा, मतलब प्रोटोगनिस्ट और एंटागनिस्ट के बीच में होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉम एंड जेरी. टॉम एंड जेरी कोई मूवी तो नहीं है, लेकिन ये कार्टून सीरीज हम देखते हैं, तो हमेशा टॉम एंड जेरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही होता है. समटाइम्स टॉम प्रोटोगनिस्ट बन जाता है, यानी कि हीरो बन जाता है, और जेरी जो है वो एंटागनिस्ट बन जाता है, विलन बन जाता है. और ज़्यादातर तो ये देखने में आता है कि जेरी ही क्या है, प्रोटोगनिस्ट है, यानी कि हीरो है, और टॉम जो है वो क्या है, एंटागनिस्ट है, जो कि जेरी के हमेशा इनके बीच में फाइटिंग रहती है. यानी कि यही कॉन्फ्लिक्ट है कि सिचुएशन में अगर हम देखते हैं कार्टून को, इसको 20 मिनट्स या 15 मिनट्स हम देखते हैं कार्टून को, तो पूरे कार्टून में 1 बाय 1 कॉन्फ्लिक्ट होता है. टॉम एंड जेरी के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई लड़ाई होती है, और वो उसी वजह से जो है वो पूरा कार्टून आगे बढ़ रहा होता है. तो यही जो है, तो ये जो है सिर्फ इस कार्टून में टॉम और जेरी के बीच में ही कोई तीसरा आता है तो वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो है वो है सिचुएशन, उसी को क्या कहेंगे, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल्स, एंटागनिस्ट एंड प्रोटोगनिस्ट, मीन्स टॉम एंड जेरी. ओके, इसी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल भी हम देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी भी मूवी में. तो इसकी जो एग्जांपल है वो है सलमान खान की एक मूवी थी बजरंगी भाईजान. तो उस मूवी में हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया उस पूरी मूवी में. तो मतलब इंडियंस जो हैं वो एक अलग ग्रुप ऑफ नेशन है और पाकिस्तानीज जो है वो एक अलग ग्रुप ऑफ नेशन है. पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, इंडियंस जो है वो बाहर मतलब हिंदू हैं. तो इन कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, और हर तरह से जो है वो जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंस है. जब वहाँ पे जो छोटी सी जो उसकी स्टोरी इस तरह से है कि जो छोटी सी बच्ची है वो इंडिया आती है अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर वापसी पे जो है वो पेरेंट्स से मतलब गुम हो जाती है. मतलब पेरेंट्स चले जाते हैं, वो ट्रेन से उतर जाती है, बॉर्डर के उस तरफ जो दूसरी ट्रेन जा रही है वो इंडिया दोबारा चली जाती है. वहाँ पे सलमान खान उसको मिलता है. तो वो सलमान खान की फैमिली के साथ, यानी कि इंडियंस में उस कल्चर में रहते हुए उसको क्या कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है उस बच्ची को वहाँ पे, उस क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी है और वो वहाँ इंडियंस के बीच में फंस गई है. तो वहाँ पे वो एक अलग तरह से कॉन्फ्लिक्ट फेस करती है. फिर जब पाकिस्तान में
सलमान खान उसको लेकर आता है, वहाँ पे सलमान खान खुद क्या कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है, यानी कि क्योंकि वो इंडियन है और वहाँ पे पाकिस्तानी उसको तंग करते हैं उसके इंडियन होने की वजह से, क्योंकि वो इलीगली वे से आया है उसकी हेल्प करने के लिए, तो वहाँ पे वो अलग तरह से कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है। तो ये दिखाया गया इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि दो ग्रुप हैं, दो डिफरेंट ग्रुप हैं, इनके बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला इस मूवी में। तो आप देखिएगा थर्ड जो कॉन्फ्लिक्ट का वे है हमें मूवी में देखने को मिलता है वो है बिटवीन अ कैरेक्टर एंड द सर्कमस्टेंसेस दैट फोर्स हिम हर टू डू समथिंग ही शी डज नॉट वांट टू डू। अच्छा, कोई भी कैरेक्टर जो कि मूवी में ऐसे सर्कमस्टेंस में चला जाए कि सिचुएशन ऐसी हो जाए उसके सामने जो कि उसको वो फेस नहीं करनी, उसको वो काम नहीं करना, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है वो उसको फोर्स करती है वैसा करने के लिए और उसको ऐसा करना पड़ जाता है। इसकी एग्जांपल जो मूवी है वो है तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पे जो मूवी है वो एक बच्चे की है। उसमें हमने क्या देखा कि वो जो स्टूडेंट की स्टोरी है, एक छोटा सा जो है वो बच्चा, उसका नाम है कैरेक्टर का ईशान, तो वो एक बहुत ही लेज़ी बच्चा होता है, आर्टिस्टिक माइंड है उसका, उसकी प्रॉब्लम्स को उसके टीचर्स उसके पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट है। तो उस मूवी में यही दिखाया किस तरह से वो अपने प्रॉब्लम से खुद फाइटिंग कर रहा है, लोगों से शेयर नहीं कर रहा, अपने टीचर से भी अपने पेरेंट्स से भी, और पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि ये जो है वो पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहा, पढ़ाई में जो है वो पढ़ाई को अवॉइड कर रहा है, स्टडीज़ को अवॉइड कर रहा है। उसका जो बड़ा भाई है हमेशा उसको अपनी मदर से ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो एकेडमिक्स में अच्छा है, मतलब स्टडीज़ में भी अच्छा है और स्पोर्ट्स में खेल में भी अच्छा है, और तुम बहुत लेज़ी हो, बहुत लेज़ी होता है, क्लास में भी जो है वो अपने जो है जब उसको टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में खो जाता है। तो ये जो है उसका आर्टिस्टिक माइंड है, उसकी पर्सनालिटी को किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। अब उसके जो पेरेंट्स हैं उसके लिए डिसाइड करते हैं कि उसे बोर्डिंग भेज देंगे, जो कि वो बोर्डिंग में नहीं जाना चाहता। तो इस वजह से जो है अब उसको पूरी बाकी की मूवी में दिखाते हैं कि वो बोर्डिंग स्कूल में रहता है, वहाँ पे जाके पढ़ता है, उसको उस सिचुएशन में नहीं जाना, तो लेकिन फिर भी उसने वो फेस किया और उसको सिचुएशन फोर्स करती है, ऐसा मूवी में दिखाया गया। तो ये उस मूवी में ईशान के लिए कॉन्फ्लिक्ट रहा बोर्डिंग स्कूल में एंटर होना और वहाँ पे जाके अपनी बाकी की जो स्टडीज़ हैं उसको कंटिन्यू करना। ओके, सो इस तरह हमारे पास हम देखते हैं मूवीज़ में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट पीपल्स मीन्स एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट, conflict between different groups of people and conflict between the person and the circumstance. Okay, so the third element we have finished here. The next element of a movie is the plot. The plot is the main story of a movie or book. तो प्लॉट जो है वो क्या है, किसी भी मूवी में हम देखते हैं कि उसकी जो मेन स्टोरी है वो पूरी जो एक स्टोरी हम डिफाइन कर दें पूरी मूवी को कि ये मूवी इस टॉपिक के बारे में है, इस सब्जेक्ट के बारे में है, तो दैट इज कॉल्ड द प्लॉट ऑफ दैट मूवी। एवरी मूवी हैज़ अ प्लॉट। कैन यू आइडेंटिफाई द मूवी विद द फॉलोइंग प्लॉट्स? तो हर मूवी का ही प्लॉट होता है। अब नीचे जो है वो डिफरेंट मूवी के प्लॉट्स दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सी मूवी है ये। अ फ्रेंडली एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लैनेट मीट्स अ यंग बॉय हु लेटर हेल्प्स हिम टू रिटर्न टू हिज प्लैनेट। अच्छा, एक फ्रेंडली एलियन है जो कि किसी और प्लैनेट से आया है, बहुत दूर प्लैनेट से कहीं आया है, और फिर उसको जो है वो कोई यंग बॉय प्लैनेट पे मिलता है, यानी कि अर्थ पे, और फिर वो उसका फ्रेंड बन जाता है। और फिर जब वो प्लैनेट वापसी जाता है अपने प्लैनेट पे, तो वो अपने जो है वो इस फ्रेंड को अपनी पावर्स जो है वो दे के जाता है। तो ऐसी कौन सी मूवी है? बहुत सारी मूवीज़ बनी है इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, बट जो मुझे याद है, जो मैंने अपने चाइल्डहुड में देखी, वो मूवी कौन सी है? कोई मिल गया। उसमें यही स्टोरी थी कि वो मूवी में जो है वो जो एक कैरेक्टर है एलियन का, जादू नाम होता है उसका, तो उसमें जो है वो यही दिखाया गया था कि वो एलियन जो है वो ऋतिक रोशन उस मूवी में है आई गेस। तो उस मूवी में यही दिखाया गया था ना कि वो जो जादू जो कैरेक्टर है वो आता है अपने दूर से किसी प्लैनेट से, क्योंकि ऋतिक रोशन ने कोई इस तरह से कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ किया अपने फादर के सिस्टम को यूज़ करते हुए, जिसकी वजह से जो है वो जो स्पेस क्राफ्ट जो आ रही होती है वो उस प्लैनेट पे आ जाती है, और फिर जादू की एंट्री होती है मूवी में,
और फिर इस तरह से जो है वो ऋतिक रोशन और उसके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उनका फ्रेंड बन जाता है। वो अजीब से उसमें सीन है, डिफरेंट सीन्स हैं उस मूवी के अंदर कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है हाइड एंड सीक और बच्चों की हेल्प कर रहा है। फुटबॉल मैच के अंदर उनको उड़ा के जो है वो उसने फ्लाई करते हुए बच्चों ने वो मैच भी विन किया। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। तो ये इस मूवी का प्लॉट है कि उस मूवी में क्या है कि एलियन किसी दूसरी जगह से आया और वहाँ पे जो है वो अपने जो एक यंग बॉय है उससे फ्रेंडशिप की और जाते हुए अपनी सुपर पावर्स उस फ्रेंड को डिलीवर करके चला गया। तो मूवी का नेम है कोई मिल गया। उसके अलावा और भी मूवीज होंगी, आप सर्च कीजिएगा। इन देयर परस्यूट टू एक्सप्लोर, नेक्स्ट सिचुएशन है क्या, नेक्स्ट प्लॉट गिवन है। इन देयर परस्यूट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड दे हैड बीन मिसिंग, एलेक्स द लायन, मेलमन द जिराफ, ग्लोरिया द हिप्पो एंड मार्टी द ज़ेब्रा फाउंड देमसेल्व्स washed ashore on an exotic island। तो ये भी एक प्लॉट गिवन है जिसमें बताया गया है कि एक लॉयन है उसका नेम है एलेक्स, एक और एनिमल है जिराफ उसका नेम है मेलमन, और हिप्पो भी एक एनिमल है उसका नेम है ग्लोरिया, और मार्टी जो है वो ज़ेब्रा का नेम है। ये चारों फ्रेंड्स होते हैं, एलेक्स इनका लीडर है और फिर ये किसी जगह पे मिस होके कहीं एडवेंचर के लिए आ गए हैं। जिस जगह पे ये आए हैं तो ये कौन सी मूवी है, जिस आइलैंड पे ये आए हैं, तो ये इस मूवी का नेम आई गेस मदागास्कर, ये वाली शायद मूवी है। आप भी सर्च कीजिएगा, आई थिंक ये ही मूवी है। मैंने नहीं देखी मूवी, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। ओके, द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अ मूवी इज इमेजेस एंड सीन। Images and scene. An image is the picture of a person, thing or place. Image जो है वो क्या है, किसी भी मूवी में जो हमें कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम क्या देख रहे हैं, पिक्चर क्या देखने को मिल रही है हमें उनकी, या फिर कोई प्लेस दिखाई जा रही है उसका इमेज, या फिर जो चीज़ें हैं उनकी इमेज। तो दैट इज कॉल्ड द विजुअल सीन्स इन अ मूवी इज कॉल्ड द इमेज। अ सीन इज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ मूवी। सीन क्या है, सीन किसी भी मूवी में पर्टिकुलर सेक्शन को, यानी कि किसी भी मूवी में एक शॉर्ट पार्ट को, उसके जिसमें जो है वो कोई शॉर्ट सिचुएशन देखने को मिली हमें, दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ मूवी इज कॉल्ड द सीन ऑफ दैट मूवी। ओके, इफ यू थिंक अबाउट इट, अ मूवी इज अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ इमेजेस एंड सीन। किसी भी मूवी में हम देखते हैं कि वन बाय वन डिफरेंट सीन्स हैं और कनेक्शन है, एक सीरीज है इमेजेस की भी और सीन्स की भी। Okay, a good movie often has many images and scenes that stay with us long after we have finished watching them. अगर हम कोई भी मूवी जो कि बहुत अच्छी होती है तो उसको हम देखने के बाद काफ़ी टाइम तक वो मूवी हमें याद रहे या ना रहे, लेकिन हमें उससे कुछ पर्टिकुलर सीन्स और इमेजेस याद रह जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो मूवीज़ मैंने अपने उसमें देखी जब मैं छोटी थी, तब जो मूवीज़ के जो कुछ सीन्स हैं वो मेरे माइंड में अभी तक हैं। तो यही जो है वो गुड मूवी जो है वो क्या है, उसके कुछ सीन्स हमारे दिमाग में बाद में रह जाते हैं, फेवरेट मूवीज हमारी होती हैं वो इसी वजह से। ओके, व्हाट इज इट अबाउट दीज सीन्स दैट मेक्स देम मेमोरेबल? इज इट बिकॉज द सीन वॉज वेरी सैड और ब्यूटिफुल, और इज इट बिकॉज इट वॉज अ सीन ऑफ समथिंग यू हैड नेवर सीन बिफोर? तो यही बात कि वो जो सीन्स हैं जो कि आपके माइंड में बाद में फ्लैशबैक की तरह अपेयर होते हैं, आपको याद आते हैं, तो वो क्यों, उस सीन्स की क्या खास बात होती है कि वो क्यों मेमोरेबल है? तो इस मतलब वो सीन्स बहुत सैड होते हैं इसलिए आपको याद रह जाते हैं, या फिर वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, या फिर वजह ये है कि वो सीन्स आपने अपनी लाइफ में नहीं देखे होते ऐसा कोई सीन। तो जो है वो यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें सीन याद रह जाते हैं। और उसके अलावा कोई और रीज़न भी हो सकता है, कोई इमोशनल सीन भी होता है, आपको याद रह जाए बाद में, डिफरेंट उसके रीजंस हैं। ओके, सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ मूवी। सेटिंग क्या है? द सेटिंग ऑफ अ मूवी रेफर्स टू द प्लेस वेयर इट अकर्स। सेटिंग जो है वो किसी भी मूवी का सेट है, जहाँ पे वो मूवी शूट होती है, जहाँ पे वो मूवी जो है वो पिक्चराइज होती है। जो सेटिंग क्या है उस मूवी का, वो जगह है जहाँ पे वो मूवी बनाई जाती है। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज हैव द फॉलोइंग सेटिंग्स? तो यहाँ पे डिफरेंट सेट्स हमें बताए गए हैं। जैसे आउटर स्पेस, फर्स्ट आउटर स्पेस पे बहुत सारी मूवीज बनी है। आउटर स्पेस पे एक मूवी है ग्रेविटी।
मतलब आउटर स्पेस पे। तो जो मूवी है उसका नेम है ग्रेविटी, एक मूवी ये है, एक मूवी मार्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके कि आउटर स्पेस जो प्लेस है ऊपर, तो वहाँ पे कौन सी मूवीज़ जो है वो बनी है ऊपर क्राफ्ट में। एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ओशन, तो जो ओशन, किसी भी ओशन के बीच में जो आइलैंड होता है, ओशन के बीच में जो एक आइलैंड होता है, वहाँ पे उस जगह पे, उस सेट पे कौन सी मूवी बनी है। फॉर एग्जांपल मूवी तो नहीं मुझे याद, लेकिन एक नॉवेल है उसके ऊपर, रॉबिन्सन क्रूसो, उसकी स्टोरी बहुत पॉपुलर मेरे माइंड में है। तो वो जो स्टोरी है, रॉबिन्सन क्रूसो उसका मेन कैरेक्टर होता है। तो वो उसने काफ़ी टाइम जो है वो ओशन में, जो है वो ओशन से जो वो तैरने के बाद जो वो एक जगह पे आ गया, एक आइलैंड पे आ गया, वहाँ पे उसने जो भी एक्सपीरियंस किया, तो वो उस मूवी उस फिक्शन नॉवल में हमें पढ़ने को मिलता है। रॉबिन्सन क्रूसो उसका नेम है। इसके अलावा गुलिवर्स ट्रैवल भी जो है वो एक और इसकी एग्जाम्पल है सेट की, कि वो जो गुलिवर होता है वो जो है वो किसी ऐसे आइलैंड पे आ जाता है जहाँ पे जो क्रिएचर्स होते हैं, जो वहाँ पे जो लोग हैं, उनका साइज होता है 6 इंचेस का, यानी कि जो आपका जो स्केल है, वहाँ पे इतने साइज के पीपल्स होते हैं, उनके आइलैंड पे वो पहुँच जाता है। तो ये भी एक जो मूवी है गुलिवर्स ट्रैवल, इस थीम के ऊपर एक इंडियन मूवी भी बनी, मुझे नेम उसका याद नहीं है, लेकिन ये सारी मूवीज़ जो है वो इस सेट को अच्छे से जो है वो क्लैरिफाई करती हैं। द आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ओशन। ओके, नेक्स्ट इज एंशिएंट चाइना। एंशिएंट चाइना किसी मूवी में दिखाया गया हो, बहुत सारी मूवीज़ मिलेंगी जो कि आप सर्च कर सकते हैं कि जिसमें एंशिएंट चाइना दिखाया गया हो। मुझे पर्टिकुलरली कोई मूवी का नेम याद नहीं है, लेकिन हाँ एक बॉलीवुड की मूवी चांदनी चौक टू चाइना, ये भी शायद जो है वो, जिसमें चाइना तो पता नहीं दिखाया गया हो, लेकिन उसमें जो कस्टम दिखाया है, जो कल्चर दिखाया है, जो ड्रेसिंग दिखाई है, जो गेटअप दिखाया है, जिसमें जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले, तो वो जाहिर सी बात है वो कल्चर जो है वो चाइनीज़ का ही है। तो इस तरह से जो है वो एक और द अमेरिकन वाइल्ड वेस्ट। अच्छा, जो इस तरह की मूवीज़ जो अमेरिका का वाइल्ड वेस्ट दिखाती है, मतलब वो वाला गेटअप जो घोड़ों के ऊपर बैठ के चलते हैं, और जो काउबॉय टाइप कैरेक्टर होता है, जो हेड लगाए हुए होते हैं, और फिर वो एक्शन दिखाते हैं उस मूवीज़ में। तो इस तरह की मूवीज़ भी बहुत सारी हॉलीवुड में हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हम देखते हैं। पर्टिकुलरली मुझे कोई इसका नेम याद नहीं है। ओके, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इन अ मूवी रेफर्स टू द मूड और फीलिंग ऑफ अ मूवी। अब एटमॉस्फेयर ही है मूवी का, जो कि हमें ये दिखाता है कि उस मूवी का मूड क्या है, और हमें मूवी का मूड देख के हमें कैसा फील हो रहा है मूवी में, कि उसका मूवी का मूड एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग जो है वो सैड मूवी है, कोई एक्शन मूवी है, या फिर जो है वो जैसे कि कोई फिक्शन मूवी है, कोई मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा दिखाई है। तो मतलब उस तरह से डिफरेंट एटमॉस्फेयर को हम फील करते हैं मूवी को देख के। उसके सब्जेक्ट क्या है, तो उसके बाद जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है मूवी में, तो वो जो है वो क्या है, जो कि हमारा मूड और फीलिंग क्रिएट करता है, इमोशंस क्रिएट करता है डिफरेंट तरह से मूवी को देखते हुए। द सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ मूवी ऑफन गो टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अ haunted house on a dark night. The setting always make us feel a little scared. The atmosphere is menacing. अब ये जो नेम है, अभी जो नेम हमने पढ़ा, द हॉन्टेड हाउस ऑन अ डार्क नाइट, तो ये नेम पढ़ते ही हमें कैसा एटमॉस्फेयर फील हो रहा है कि डार्क नाइट है। ये जो है वो डार्क नाइट क्या बता रहा है कि एटमॉस्फेयर ऑफ अ मूवी, और हॉन्टेड हाउस जो है वो क्या है, उसकी सेटिंग है। तो सेटिंग और एटमॉस्फेयर को देखते हुए समटाइम्स मूवीज़ के नेम रेफर किए जाते हैं, रखे जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अ मूवी इज साउंड। साउंड रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। साउंड जो है वो किसी भी मूवी में जो है वो क्या करता है, म्यूज़िक और साउंड को कंट्रीब्यूट करने के लिए कॉम्बिनेशन बनाता है। उस मूवी के एटमॉस्फेयर देख के, उसके कैरेक्टर्स को, उसके प्लॉट को देख के, डिफरेंट इमेजेस को देख के जो है वो उसका म्यूज़िक, उसका साउंड, उसके साउंड इफेक्ट्स पर डाले जाते हैं उस मूवी में। ठीक है, अच्छा, साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ वी फील अबाउट अ मूवी। तो साउंड, through music and sound effects, we are able to experience the emotions of a movie
Can you think of an instance when the music from a movie really excited or move you? अगर कोई मूवी में साउंड ही नहीं होगा, कोई मूवी के अंदर कोई म्यूजिक ही नहीं होगा, तो वो मूवी कैसी लगेगी? बहुत बोरिंग सी लगेगी, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, हमें एक्साइटमेंट ही नहीं होगी. तो मूवी में जो है वो साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं. अच्छा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक वुड यू एक्सपेक्ट टू हियर इफ यू आर वाचिंग अ सैड मूवी, अ साइंस फिक्शन मूवी, एन एक्शन मूवी? तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवीज में, मतलब मूवी का टॉपिक देखते हुए, मूवी का सब्जेक्ट देखते हुए, उसमें मूवी में जो है वो उसका साउंड सिस्टम रेडी किया जाता है. अगर कोई मूवी सैड है तो उसमें जो है वो जो साउंड की थीम है वो सैड रखी जाएगी ना, ताकि इमोशंस को जो सामने जो देखने वाला है उसको वो फीलिंग वो वैसा फील कर सके, उस साउंड्स को सुन के, थ्रू साउंड्स जो है वो इमोशंस जो है वो जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो है वो उसको देख के कैसा फील कर सके, सैड फील कर सके. इसी तरह से अगर कोई साइंस फिक्शन मूवी है तो उसमें हम देखते हैं बहुत फास्ट म्यूजिक आ रहा होता है, बहुत तेज़ी से सारे काम हो रहे हैं, बहुत फास्ट उसमें जो है म्यूजिक आता है, तो वो उस मूवी के थीम के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है उस मूवी में. और एक्शन मूवी में भी यही है कि बहुत सारी चीज़ें गिरने की आवाज़ आती हैं, फायरिंग की आवाज़ आ रही है, बहुत सारी इस तरह के म्यूज़िक इफेक्ट्स में डाले जाते हैं, क्योंकि वो एक्शन मूवी है तो उसमें एक्शन की वजह से जो है वो उस तरह के साउंड्स जो है वो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझाने के लिए जो है वो देखने वाले को, व्यूअर्स को, उसमें जो है वो इस तरह के साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं. ओके, सो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स, लेट्स रिव्यू दैम. द फर्स्ट वन इज credits. Credits list the people who have made contributions to the movie. Character are the different people who appear in the movie. Character in a movie are the different people who appear in it. And we find the two different characters in a movie. The first one is the antagonist, who's the bad character of a movie, means the villain of a movie, and the protagonist in a movie who is playing the good character of a movie, and he is called as the hero of the movie. The next, conflict. Conflict of the movie refers to the state of confrontation or struggle. And plot is called the main story of a movie. Image and scenes. Image is the picture of a person or place and thing. Scene is called a particular section of a movie. Sound is the combination of music and sound effects in a movie. And setting and atmosphere. Setting in a movie is the place where it occurs, and the atmosphere in a movie is called the mood or feeling of a movie. And all of these elements gives us the theme of the movie. What is the theme of the movie? The theme is the main idea of the movie or a story. मीन्स थीम जो है वो क्या है, किसी भी मूवी में उसका सब्जेक्ट क्या है, मेन आइडिया क्या है, वो मूवी क्यों बनाई गई है, क्या लेसन देने के लिए बनाई गई है, तो वो उस मूवी का जो मेन आइडिया है उसी को थीम ऑफ द मूवी कहा जाता है. जैसे कि थीम जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है. द थीम टेल्स अस व्हाट द मूवी इज अबाउट. सम कॉमन थीम्स इन मूवीज इंक्लूड बिलीविंग इन योरसेल्फ. मतलब आपको कोई मूवी जो है वो देखने को मिली जिसमें आपको ये सीखने को मिला हो कि आप अपने ऊपर कैसे बिलीव करें, अपने ऊपर कैसे ट्रस्ट करें. ठीक है, इस तरह से जो है वो बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप से सच बोलें. ठीक है, एक और जो थीम है वो ये हो सकती है मूवी की, द इम्पॉर्टेंस ऑफ डूइंग द राइट थिंग. मतलब काम जो है वो आपने हमेशा सही करने हैं, कोई गलत काम नहीं करना. आपको ये मूवी से मैसेज मिला हो कि आपने अच्छे काम करने हैं, आपने सही करना, आपने गलत काम नहीं करना. इस तरह की मूवीज हम देखते हैं जिससे हमें ये सारे लेसन मिलते हैं. बिलीविंग इन योर सेल्फ, बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, द इम्पॉर्टेंस ऑफ डूइंग द राइट थिंग, द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर फैमिली. आपकी फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, तो आप जो है वो द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में. तो ये सारे मैसेजेस जो है वो हमें कोई भी जो मूवी है उसकी थीम से हम आइडिया कर लेते हैं देख के कि ये थीम जो है वो हमें क्या मैसेज डिलीवर कर रही है. ओके, नाउ दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मूवी. लेट्स डिस्कस योर होमवर्क. So this is your home task. Watch your favorite movie and analyze it using the different elements of a movie. तो कोई मूवी आपने सेलेक्ट करनी है, कोई मूवी आपने देखनी है कि आपकी फेवरेट मूवी है, और उस मूवी को देखने के लिए आप क्या करेंगे, 15 मिनट्स मूवी को देखेंगे, वॉच करेंगे, उसको पॉज करेंगे. पॉज करके फिर जो एलिमेंट्स ऑफ मूवी आपको मैंने बताए हैं
इसके ऊपर कुछ नोट्स लिखेंगे अपनी नोटबुक में कुछ नोट्स लिखेंगे, ठीक है। उसको एनालाइज करेंगे, क्रेडिट्स के बारे में लिखेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्या है मूवी का, थोड़े थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे, सेटिंग क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, साउंड क्या है, और इमेजेस एंड सीन्स, अपने जो आपका जो कोई फेवरेट सीन है। तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मूवी जो कि आपने स्टडी किया अभी आज क्लास में, अंडर दीज एलिमेंट्स you will analyze your favorite movie, any of your favorite movie. Okay, so this is your home task. In the next class, inshallah, we will study the writing workshop and vocabulary of this unit. Thank you. Allah Hafiz.